तो ये चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे जाएगी. So in the different parts of the India, different geological phenomena. This kind of geological phenomena can bring what I said, that a small earthquake. Isostatic balance. इसको क्या क्या बोलेंगे हम? Gravitational balance. यहां पर वेट क्या हुआ? डिक्रीज. एंड यहां पर क्या हुआ? वेट इंक्रीज. एंड दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल बैलेंस. एंड दिस ग्रेविटेशनल बैलेंस is considered as a what? Isostatic balance. So आप ये लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो यूज करूंगा only isostatic balance. I'll use the word isostatic balance. So write down next point. Isostatic balance in different parts of India can also bring earthquake to some extent. Now, so why there is a need of microgenation, everyone is clear. First point, I said that there are several faults and gaps along the river system. Yes or not? Another point, I have said that settlement along the river banks, clear. Thereafter, we discuss about which one? Mining in different parts of India. And another one, isostatic balance. समझ में आ चुका है? So these are the major reason we can say that हमें microgenation we need. Yes or not? हर शहर में कुछ न कुछ, every district there is something is happening, and there is a minor earthquake due to what I said, that nearby some structure is also forming. थोड़ा सा उससे minor earthquake कोई भी आते हैं, लेकिन वो आपको करने की जरूरत नहीं है. So the next point that we are going to see, अब हम लोग next point करेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको. There is a Bureau of Indian Standard has given data to IMD, Indian Meteorological Department, and IMD has formed 4 seismic zones of India. And you know that IMD comes under the Ministry of Earth and Science. Understood it? So who gives data? BIS. And who receives the data? And who has prepared the 4 seismic zone? IMD. Finally, understood it? So write down, ये question आपके लिए बहुत important है. Who has prepared the 4 seismic zone of India? या seismic zone of India. It can be in the prelims examination. Very important. Understood? लिखेंगे with the help of Bureau of Indian Standard, Indian Meteorological Department, has prepared 4 seismic zone of India. 4 seismic zone of India. Shall I remove? Clear? National
earthquake risk mitigation प्रोजेक्ट। और ये किसके अंदर में आ रहा है? इट इज कमिंग अंडर प्री डिजास्टर, प्री डिजास्टर। एंड विल इट बी प्रिवेंशन? या अर्थक्वेक में प्रिवेंशन कहां से हो सकता है? लास्ट क्लास में बताया क्या? विल इट बी इन द प्री डिजास्टर? व्हाट इज देयर? प्रिवेंशन, प्रिपरेशन, मिटिगेशन। प्रिवेंशन मीन्स ब्लॉक, ऐसा सिस्टम कर दो कि बिल्कुल नहीं आए, तो ऐसा हो नहीं सकता अर्थ में। प्रिवेंशन कैन नॉट बी टेकन, यस और नॉट? मिटिगेशन कैन बी डन, एंड व्हाट वी कैन डू? प्रिपरेशन, यस और नॉट? तो हमें प्री डिजास्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? विच वन? मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन। अब यहाँ पर अपने आपको छोटा छोटा पॉइंट्स है, उसको दिमाग में आप डालते जाएंगे। देयर इज़ ये हम लोग प्री डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्री डिजास्टर में हम लोग को क्या करना है? प्रिपरेशन एंड विच इज़ द इम्पॉर्टेंट बॉडी? नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। क्लियर? So first important thing that I need to discuss, it is I said that हमें क्या करना चाहिए? There is some structural and the non-structural projects, yes or not? Yes or not? Structural project क्या क्या है? Yes, tell me. Structure है कि building जो हमारी है, those building which is I said that undergoing to be construction in the coming time, it should be followed as per the what? Rules and regulation, yes or not? And there I said that there is some non-structural, means I said that where the human being is involved through the different, I said that institutional phenomena like NDMA, DDMA, SDMA, all are working together through the different, I said that mechanism, that should be strengthened. ये हमें strengthen करना है, yes or not? So what is the main aim of this earthquake risk mitigation project? What is the main aim? I said the main aim, listen me, the main aim of this risk management project is to what I said that strengthen structural and non-structural. Strengthen structural and non-structural mitigation projects. Understood it? To reduce disaster risk. Understood it? So write down. First point. हमें हमेशा ही इसी के बारे में बात करना है, डिजास्टर के रिस्क को कम करना है. Its main aim to strengthen structural and non-structural mitigation efforts to reduce disaster risk. क्लियर? कोई दिक्कत? नॉन स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर होता है जिसको आप छू सकते हो, टेंजिबल थिंग्स, यस और नॉट? टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, टू थिंग्स आर देयर, यस और नॉट? तो वी हैव टू वर्क ऑन द व्हाट नॉन स्ट्रक्चरल में जितने भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उनका जो वर्किंग फेनोमेना है, इट इज नॉट ए स्ट्रक्चर. गेटिंग माय पॉइंट? वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है. स्ट्रक्चर तो ये बिल्डिंग है, तो बगल में कोई बिल्डिंग बन रहा है, इफ एनी बिल्डिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंस्ट्रक्शन, ही हैज़ टू बी फॉलोड. व्हाट आई सेड दैट हमारी सिस्टम ऐसा स्ट्रांग हो कि वो स्ट्रक्चर अच्छा बने. पहली बात तो लोग घूस दे देते हैं और फिर कुछ और बना लेते हैं. क्लियर? तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो, और बोला जाता है 30% वी हैव टू लीव द स्पेस, मीन्स वी हैव टू लीव द स्पेस. वी शुड नॉट मेक द बिल्डिंग एनी विच इज आई सेड दैट नियर बाय द व्हाट आई सेड दैट क्राउडेड प्लेसेस. मॉल वगैरह जो बनाया जाए तो वहाँ पे देखा जाए कि क्योंकि मॉल में भी रश होता है और यहाँ पर भी स्कूल में भी रश होता है, तो देयर कुड बी अ चांस ऑफ एक्सीडेंट आल्सो यदि रोड बहुत बिजी हो.
तो हमें ये भी देखना होता है, रोड एक्सीडेंट इज ऑल्सो व्हाट आई सेड दैट डिजास्टर, तो एक बचाव में दूसरा ना हो जाए। तो हमें अपने बिल्डिंग जो मॉल वगैरह फॉर्मेशन भी हो तो इट इज़ लिटिल बिट अवे फ्रॉम दोस वेयर देयर इज एन आई सेड दैट हाई क्राउड, लेकिन दिल्ली में तो पता नहीं क्या क्या है। एंड हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में कोई नियम तो है ही नहीं, दिखता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सो फर्स्ट वन वी हैव सीन, ऑल ऑफ यू रिमेंबर रिस्क इक्वल्स टू व्हाट? यस और नॉट? अब हमें किसके बारे में बात करना है? कैपेसिटी। हमें कैसा कैपेसिटी क्या होना चाहिए? बिल्डिंग बनाने के लिए हमेशा हमें टेक्निकल असिस्टेंस दें, यस और नॉट? यदि बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है तो व्हाट शुड आई गिव? क्या देना चाहिए? टेक्निकल असिस्टेंस की बिल्डिंग जो स्ट्रांग बने। हाउ टू मेक द व्हाट आई सेड दैट द बिल्डिंग टू बी व्हाट आई सेड प्रोन टू हैजार्ड, जो अर्थक्वेक आए उसे गिरने से थोड़ा सा बचाया जा सके। So there should be a technical assistant in the capacity building, of the structures, yes or not? So write down the next. Technical assistance in improving capacity building, कैपेसिटी लिख ले, बिल्डिंग नहीं छोड़ देना, इंप्रूविंग कैपेसिटी इन स्ट्रक्चर्स। क्लियर? क्या आपको लगता है कि टेक्निकल असिस्टेंस मैनेजमेंट प्लान में भी होना चाहिए? टेक्निकल असिस्टेंस वहां पे भी होना चाहिए कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए कि हमें फास्ट पहुंचना है, यस और नॉट? हमें कहीं पे भी इफ़ आई हैव टू रिच, यदि मैं अभी जो दैट अभी केस हुआ जहाँ पर अर्थक्वेक, सॉरी आई सेड दैट ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड, यदि एसडीआरएफ टीम स्टेट से गई, एनडीआरएफ टीम नेशन से गई, यस और नॉट? और आप जानते हो कि इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, आई सेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ, व्हाट आई सेड दैट एनडीआरएफ, आईटीबीपी, यस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड सीमा सुरक्षा बल, yes or not? So if I said that if they are there, then what are the, what I said that headquarters to be nearby at the same time, and their equipments किसी भी disaster के लिए they should be ready for it। तो हमें किसी भी disaster, चाहे साइक्लोन भी आएगा तब भी मैं ये बोलूँगा technical assistance in the management plan। management plan का मतलब क्या होता है? control and coordination, control and मैनेजमेंट यही है ना कि मैनेज क्या करना है इन द हायरार्की, ऊपर से लेकर एसडीएम में, डीएडीएम में सब लोग हो, और कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन फास्ट हो, और साथ में ऊपर में बैठा हुआ सैटेलाइट हमें अच्छा इमेज दे रहा है, फटाफट क्लियर इमेज, यस और नॉट? सो वी कैन हैव व्हाट आई सेड दैट टेक्निकल असिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ड्यूरिंग डिजास्टर, यस और नॉट? तो उसमें हमें मैनेजमेंट में ऐड कर देना है, तो लिखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस इन इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ, technical assistance in improving the capacity of disaster management। Got it? Got it? Next point, National Building Code NBC. Next point is 2005. NBC 2005 National Building Code। It should be followed. It should be, बस इतना ही लिखो, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इट शुड बी, ये कोड है कि इतनी जगह जहाँ पे बनाए, जो अभी हमने बात कर रहे थे ना कि कितनी खाली जगह रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट आई सेड दैट इट इज कंसिडर्ड नेशनल बिल्डिंग कोड 2005। और ये आज का नहीं बना हुआ है, इट्स अ वेरी ओल्ड एक्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005। इट इज क्लियर, इट शुड बी फॉलोड। अनदर सिस्मिक रेट्रोफिटिंग, seismic retrofitting।
क्लियर? इट मीन्स जो बहुत हाई अर्थक्वेक जोन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ की जो ओल्ड स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको क्या होना चाहिए? इट शुड बी एज पर द NBC 2005. क्या होना चाहिए? तो ओल्ड बिल्डिंग हैज टू बी व्हाट आई सेड दैट, जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं दे हैव टू बी व्हाट आई सेड दैट गिविंग व्हाट आई सेड दैट स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा एज पर द NBC 2005. रेट्रोफिटिंग का मतलब है जो भी बिल्डिंग बनी हुई है ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव टू मेक स्ट्रांग इनफ टू फाइट अगेंस्ट अर्थक्वेक. अंडरस्टूड इट? Seismic retrofitting. Write down. It means as per the NBC old structure should be strengthened. Old structure should be strengthened in high seismic zone. Old structure should be strengthened in high seismic zone. Clear? Clear हो चुका है? So what are the things that we have to do? It is clear. हमने क्या क्या, what are the points we have done in the mitigation? National Earthquake Risk Management Mitigation Project. First point, simply I said that we have to strengthen which one? Structural and non-structural, yes or not? Mitigation efforts, yes or not? हमें उसको strengthen करना है. Second point, technical assistance, yes or not? And technical assistance in which one? स्ट्रक्चर्स. उसके बाद नेशनल, फिर हमने बोला टेक्निकल असिस्टेंस. पहला तो इंप्रूविंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन आई सेड दैट टेक्निकल असिस्टेंस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. देन आई टॉक्ड अबाउट, यस टेल मी, NBC 2005, and then I said that seismic retrofitting, yes or not? On one more important thing, कम्युनिटी, हमें क्या होना चाहिए? कम्युनिटी प्रिपरेशन. क्या होना चाहिए? कम्युनिटी अर्थक्वेक के बारे में ड्रिल, थ्रू द ड्रिलिंग कम्युनिटी प्रिपरेशन होना चाहिए. कम्युनिटी एंड स्कूल कॉलेजेस लिखेंगे, कम्युनिटी स्कूल कॉलेज कम्युनिटी स्कूल colleges should have earthquake drill. Clear? Earthquake drill. अर्थक्वेक की ड्रिलिंग समझ रहे हैं ना? बहुत हमारे यहाँ होता है. एवरीबडी, मतलब पूरी कम्युनिटी सबको पता है कि व्हाट इज द अर्थक्वेक एंड हाउ वी हैव टू सेव आवरसेल्फ. जब बिल्डिंग जब हो, कहाँ होता है? सर हिला रहे हो? हाँ सर. कहाँ होता है? यदि कोई बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग के पास तो पहली बात नहीं खड़े रहना चाहिए आपको. एटलीस्ट घर में यदि अर्थक्वेक आ जाए तो आपको कहाँ रहना है? इन विच पार्ट ऑफ द व्हाट आई सेड दैट हाउस दैट यू शुड ट्राई टू सेव योरसेल्फ. एंड एट द सेम टाइम आप घर बना रहे हो. पिछली क्लास में मैंने बोला था, इफ यू आर मेकिंग एन हाउस देन द हैवी थिंग्स शुड नॉट बी एट द अपर साइड ऑफ द वॉल, हैवी थिंग्स शुड बी एट द लोअर, and then glasses should not be, and when you are on the bed then the AC and different heavy things should not be also above your, I said that bed side में wall जो रहता है. So many things, and the flammable objects should be taken care of. ये सारी चीज़ें, जैसे आप पाइप वगैरह को देखते रहें, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होगी ना, इधर उधर हिलेगा, कोई भी लीकेज कहीं से एक्स्ट्रा हो गया, then earthquake will convert into another type of disaster. Understood it? And we should try to live away from the, I said that skyscraper building or any kind of 4-5 floor building also. Any house we have which has, I said, the large number of glasses are there. कई बिल्डिंग में ग्लासेस बहुत दिख रहे होंगे आपको. You should try to move away from here. ये छोटी सी बात है, लेकिन हम लोग खड़े होकर देखने लग जाते हैं. अच्छा ये बिल्डिंग में, अरे ये हिला है, उसके बाद आप हिलने लायक नहीं रहते. So we have been able to see like this. Now we have to see, and we have seen it is in a preparation, mitigation, and the next one, post disaster. Post disaster. Post disaster.
क्या होना चाहिए? जैसे डिजास्टर आए तुरंत क्या क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स, आर फॉर रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, और मैं वही पॉइंट लिखा रहा हूं जिसमें आप मेंस में लिखकर यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा हेयर एंड देयर। अंडरस्टूड इट? फर्स्ट पॉइंट, फास्ट रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन। क्लियर? और वहां से जब डेड बॉडी निकलती रहेगी तो उसका हमको क्या करना होगा? डिस्पोजल भी करना होगा। तो रिकवरी ऑफ द डेड बॉडीज लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ द डेड बॉडीज एंड देयर डिस्पोजल। एंड देयर डिस्पोजल। और ये कौन करेगा? सभी करेंगे। एनडीआरएफ, अभी जो आपने फ्लड में देखा अभी प्रॉब्लम, उसमें कौन कर रहा है? एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम कर रही है वो सब काम। हु इज डूइंग? एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम इज डूइंग, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट देयर रोल कंप्लीटली, द कम्युनिटी ऑल्सो इन्वॉल्व। सपोज यहीं पर आसपास कुछ हो जाए तो एवरीबडी विल इन्वॉल्व along with what I said that those teams, NDRF, National Disaster Response Force, as well as State Disaster Response Force, और DDR आपको DDM में उसको सहायता देने लग जाएगी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आई सेड द फर्स्ट पॉइंट, आई सेड दैट हमने क्या कहा था? यस टेल मी, पहला क्या होना चाहिए? फर्स्ट रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन। एंड जब आप इवैक्यूएशन कुछ कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू गेट द डेड बॉडीज, तो फास्ट आप क्या करें? रिकवरी करें एंड दैट डिस्पोजल आल्सो। नेक्स्ट वन, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी? है वो क्रिएट हो जाएगा? यस, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। मैं वो पॉइंट बोल रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से लिख सकें। देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फटाफट दूसरा क्या काम करोगे आप बताओ फटाफट? व्हाट द नेक्स्ट यू विल डू? क्या चाहिए वहां के लोगों को? ये चाहिए तो सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ अनदर व्हाट, जो रिकवरी आपने किया है, लोगों को कुछ डेड बॉडी और कुछ लोग रेस्क्यू करके निकल गए हैं, उनको क्या चाहिए? मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड, यस और नॉट? लिखेंगे प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। आप सब लोग ये जो चीज है, दिस इज द पोस्ट डिजास्टर एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ। नेक्स्ट व्हाट शुड वी डू? फाइनेंशियल सपोर्ट, ये तो रिकंस्ट्रक्शन लेटर ऑन, धीरे धीरे। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, उसी समय क्या क्या और जाना होगा? उस जगह पर कोई डिजास्टर आ जाए तो देयर इज एन, आई सेड दैट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है? डिस्टर्ब, यस और नॉट? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन डिस्टर्ब। हमें तुरंत ट्राई करना होगा कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिपेयर कर दिया जाए एंड रिपेयरिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, यस और नॉट? ठीक है, लिखेंगे किस लिए? फॉर फास्ट सर्विसेज। यदि सर्विसेज को फास्ट प्रोवाइड करना है तो देयर शुड बी, व्हाट आई सेड दैट, हमें इमीडिएटली वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड अनदर वन इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू बी रिपेयर्ड। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम and communication system, transportation system and communication system to be repaired for the fast services. Clear?
अब इसके बाद आपने सब कुछ कर दिया है, देन यू स्टार्ट डूइंग व्हाट आई सेड दैट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, आई सेड दैट बिल्डिंग, रोड्स, जो भी आपको, क्योंकि ये सब टाइम लेगा, एंड देयर आई सेड दैट रिहैबिलिटेशन. अंडरस्टूड इट? सो राइट डाउन rehabilitation of the local people better than pre-disaster, better than ये सब हमने डिस्कस किया. बेटर देन प्री डिजास्टर, हमारी जो भी हो, क्या होना चाहिए? बिल्ड बैक बेटर. यू रिमेंबर दैट? ब्रिंग बैक बेटर. यस और नॉट? तो पहले से ज़्यादा मुझे बेटर करना है. यस और नॉट? तो हमारा जो पोस्ट डिजास्टर में जो रिहैबिलिटेशन काम हो, रिकंस्ट्रक्शन, क्या लाइन बोला था मैंने? नेक्स्ट वन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, reconstruction of different infrastructure better than pre-disaster. Clear? So we have seen, like I said, that हम लोगों ने we have seen the different causes of the earthquake and where is the seismic zone of India in the different parts, and we have studied like case studies itself. आपको कहीं भी बोला जाए कि what is the cause of earthquake, of high earthquake in the Jammu and Kashmir, यदि आ जाए तो आप बता सकते हो. आप बोलोगे it is formed by the Indian Gondwana continental plate and the Eurasian continental plate convergence and their compressional force, and this is the fold mountain, and in between there is an which are thrust faults are there in the form of MCT, MBF and HFF, and that's what during the plate movement this fault zone become very active, and that leads to the seismic zone 4 and 5. लिखवाया हुआ आपके क्लास के नोट्स, पिछली क्लास में देखा होगा आपने. यस और नॉट? तो एनीवेयर कहीं पे भी होता है तो आप आराम से बोल सकते हो. एंड अगेन आज भी जो उसके बाद हम लोगों ने वो सब चीज़ किया. एंड नेक्स्ट वी हैव डन टुडे माइक्रोजोनेशन. यस और नॉट? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हमने समझ लिया. एंड एट द सेम टाइम व्हाई वी नीड माइक्रोजोनेशन? माइक्रोजोनेशन सेवरल फॉल्ट्स, गैप्स इन इंडिया. एट द सेम टाइम रिवर बैंक रीजन्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Yes or not? And we have seen also that there is some kind of isostatic balance is also one of the reason for this in the different parts of India. Mining, these are the important reason we are converting. There are so many other small, but the major it is this. Clear? And then after we came for what is the meaning, what is for the pre-disaster mitigation and this one. And then most important body that I talked about, which one I said that? National Earthquake Risk मिटिगेशन प्रोजेक्ट, और इसी के थ्रू सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे. तो इसके लिए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं. एंड उसके बाद आई डिस्कस विद यू पोस्ट डिजास्टर. यस और नॉट? एंड देन पोस्ट डिजास्टर क्लियर है. कोई डाउट? चले आगे. द नेक्स्ट वन इज साइक्लोन. What is cyclone? और ध्यान रखिएगा वहां पर ऐसे रहेगा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. क्लियर? What is cyclone? अब कोई नहीं बोलेगा. कुछ लोग ज्योग्राफी के अच्छे ज्ञाता होंगे. सम ऑफ यू. व्हाट इज साइक्लोन? occur due to tsunami is due to earthquake, not cyclone is due to earthquake. Tsunami waves. Earthquake does not have any role in the cyclone. Huh?
Okay. Cyclone. Air pressure gradient is very high, therefore the wind start moving fast. Yes, anybody? Low pressure at the center. और कोई मुझे बताएगा? Yes? Yes, tell me. What is cyclone? ओके और कोई मुझे? हम लोग किस साइक्लोन की बात कर रहे हैं? दे आर द टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. ओके, एंड द टेम्परेट साइक्लोन अक्कर इन द यूरोपियन रीजन and there is no disaster because of that. Okay, so disaster is due to the only tropical cyclone. Tropical temperate cyclone is what I said, that if you have seen in the match in England, sometimes heavy rainfall take place, sometimes and suddenly the match has been, what I said, that is stopped for 2 hours and then again match has been started. देखा होगा कभी लंदन में मैच हो रहा हो, कभी आपको कोई एक्सपीरियंस हो एनी टाइम, तो वो होता है कोल्ड फ्रंट. That is known as a cold front. And sometimes the rainfall is taking in the form of drizzle, not rainfall. कभी कभी देखा होगा ना, बाहर drizzle गिरते रहता है, small droplets, very small droplets of water. Clear? That is known as drizzle. And drizzle is taking place for the 3-4 days and thereafter the match, test match abundant. ऐसा भी देखा होगा आपने. So that is known as warm front. And the stationary front, cold front, warm front, occluded front, that is considered as a temperate cyclone. और वो रेनफॉल आपने देखा होगा, कोई डिजास्टर नहीं होता, इट इज़ बून फॉर देम. बट आवर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, आई सेड दैट, कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर. तो पहली बात है कि इट अक्कर्स इन ट्रॉपिकल रीजन. यस और नॉट? इट अक्कर्स इन, तभी तो हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं. यस, इट इज एन, आई सेड दैट ट्रॉपिकल रीजन. फर्स्ट पॉइंट. Clear? Got it? And in the, I said that, and the center with low pressure surrounded by high pressure isobar, means it is a low pressure center and it is surrounded by high pressure and the winds are moving towards it. Clear? So the first, it is a low pressure at the center surrounded by, understood it? So if it is in a low pressure center, this is the low pressure center आप देख रहे हैं आप, yes or not? Generally one student has said that sir कि pressure gradient होना चाहिए, pressure gradient, that's okay. अच्छा, can you tell me what is Coriolis force? Yeah. West to east. Anybody else? अरे बोला करो ना आप लोग. Only if I'll pressurize, then you will tell. यस, आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो. यदि इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं समझाऊंगा नहीं, मैं इसका सिंपल डेफिनेशन दे दूंगा. व्हाट डू यू थिंक? यू मस्ट बी नोइंग अ बिट ऑफ इट. ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे. जो भी जानते हैं, यू जस्ट ट्राई टू शेयर विथ मी.